Hello, I am a CA final student. I have just given attempt in November 20 CA final examinations and I am today here to discuss with you the November 20 international taxation paper. I am just sharing my views and what my opinion on the above questions. I am discussing with you case study number 3. I have already uploaded case study number 2 and case study number 1. You can watch it on my channel. I am just sharing with you my opinion on the above questions. It's not just the final answers, but I have prepared all the relevant support hints for my answers from the ICAI study material, and you can find it out. Now we proceed with our first question. What is the time limit for issue of the show cause notice for levy of penalty on Acharya for failure to produce certain evidences? To answer this question, we have to refer section 46 of the Black Money Act 2015. Okay? Now we proceed to section 46 of the Black Money Act, and here we read in respect of penalty leviable under section 45 for other defaults, namely what are these default? Answer question, sign statement or attend or produce books or documents or without reasonable cause. If you do not produce books or books of accounts or document, if you does not produce certain evidences and document, then what is the time limit for show cause notice or for issue of penalty? Show cause notice had to be issued within a period of 3 years from the end of the financial year in which the default is committed. So in the above question, default was committed on. In the above question, the notice, the documents were required to be submitted by 16th of October 2016. Now we have to calculate 3 years from the end of the financial year in which default was committed. So the end of the financial year will be the 31st of March 2017, and 3 years from that, it comes to 31st of March 2020. So the correct option will be C, option number C, 31st March 2020. How we have arrived at this? First of all, we have to see in which year the default have been committed, and we have to see 3 years from the end of that year, and accordingly the answer is 31st March 2020 because the default was committed on 16th of October 2016. Now we proceed to question number 2 of our MCQ discussion. It is about section 115JH of the Income Tax Act. It wanted us to compute the amount of UAD, unabsorbed depreciation, and business loss which are eligible for carry forward. Which are eligible for carry forward, है ना? अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर. जेफरसन लिमिटेड ना इसका पोयम की वजह से रेजिडेंट बन जाता है फॉर द ईयर 31st मार्च 2020. ठीक है, तो अब इसने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया एक 2019 से 31 मार्च 19 का. इसका एक्चुअल में जो अकाउंटिंग ईयर था ना वो कैलेंडर ईयर था, कैलेंडर ईयर एसेट्स अकाउंटिंग ईयर. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो 31 मार्च 2020 से पहले जो कैलेंडर ईयर आ रहा होगा वो कौन सा आ रहा होगा, 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020. अब हमने 115GH में ये पढ़ा था कि एक कंपनी क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी. अगर मान लो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लो 115JH जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर जैसे कैसे डिफरेंट होता है. इन्हें इस साल के लिए तो पूरा प्रीवियस ईयर वाला ही बनाना पड़ेगा, लेकिन अब जैसे मान लो इनका जो पिछला जो साल होगा उसका अकाउंटिंग ईयर कैसे बना होगा. अब अगर आप समझो कि 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2019 तक के अकाउंट्स बने हुए हैं. ठीक है, 31 दिसंबर 2019 के. अब इन्हें ये करना होगा 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019 के अलग से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो जब इन्होंने ये अलग से अकाउंट्स बनाए तो इनके पास बिजनेस लॉस आया, यूएडी आया 30 लाख रुपए का, एंड बिजनेस लॉस आया 50 लाख रुपए का, है ना. अब क्या हुआ, अब हमारा जो P&L बन चुका है वो बन चुका है 31 मार्च 2019 को. अब हमें क्या बनाना है P&L, अब हमें बनाना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020. तो इन्होंने भी यही किया. तो इन्होंने 12 मंथ पीरियड एंडेड 31 मार्च 2020 में यूएडी आया इनके 80 लाख रुपए एंड बिजनेस लॉस आया 120 लाख रुपए. अब इन्होंने हमसे पूछा कि कितना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ये अमाउंट. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात क्या है कि ये जो अब आप समझो जो 1/1/2019 टू 31 मार्च 2019 है. अब आपने ये पढ़ा होगा 115JH में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर ये पीरियड 6 महीने से कम होता है तो ये पुराने वाले पीरियड में जुड़ता है, मतलब ये एक ही अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा. कौन से
कौन से वाला अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा? 1 जनवरी 2018 टू 31 मार्च 2019। तो इसे एक ही अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा, क्योंकि ये पीरियड, ये जो गैप है ना, ये जो गैप 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019, इट इज लेस देन 6 मंथ, तो क्या माना जाएगा? ये एक ही अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा। तो ये वाला जो यूएडी और बिजनेस लॉस है, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और ये वाला यूएडी और बिजनेस लॉस है, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि यूएडी तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कैरी फॉरवर्ड की, लेकिन बिजनेस लॉस सिर्फ 8 साल तक हो सकता है। और ये कौन सा लॉस माना जाएगा? ये जो ऊपर वाला है, ये माना जाएगा कौन से वाले पीरियड का लॉस, मतलब इससे पिछले वाले का। तो इसके लिए हम कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? इसे हम 7 साल और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये भी हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और ये भी हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो टोटल हम कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? 30 प्लस 50 plus 80 plus 120, it comes to 280. So the answer will be option number C, that is 280. तो इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 115GH allows to carry forward both, है ना? अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, सेक्शन 115GH का ये एक्सट्रैक्ट है, आप ये पेज नंबर 2.23 ऑफ द स्टडी मटेरियल में देख सकते हो। इसमें क्या है? आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूएडी दोनों आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड यूएडी बोथ यू कैन कैरी फॉरवर्ड एज पर सेक्शन 115GH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका मतलब ये टोटल जो आप है, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, है ना? तो ये भी आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की और। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की और। इसमें बहुत ही इजी एमसीक्यू, इट वाज अ वेरी इजी एमसीक्यू। इसमें क्या पूछ रखा है हमसे कि फी पेबल निकालना हमें एडवांस रूलिंग के लिए, और एक हमें निकालना है कि क्या एक रेजिडेंट एसएससी जो कि विजय कंपनी लिमिटेड है, ही इज अ रेजिडेंट एसएससी, तो क्या ये एप्लीकेशन कर सकता है फॉर द इम्परमिसिबल अवॉइडेंस, ऑल्सो स्टेट वेदर इट कैन सीक रूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पहले एक नीचे चीज पढ़नी पड़ी। विजय कंपनी लिमिटेड, ठीक है, विजय कंपनी लिमिटेड, इसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है 100 करोड़ से एक्सीड, मतलब एक्सीड 100 करोड़ बट वुड बी लेस देन रुपीज 200 करोड़। तो सबसे पहले अगर हमें फीस डिटरमिन करनी है, तो फीस डिटरमिन करने के लिए हम आए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला where the amount of one or more transaction exceeds rupee 100 crore but does not exceed rupee 300 crore, the fees would be rupee 5 lakh, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की फीस चार्ज होगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्लियर हो गया। क्या एक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या एक बंदा इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए क्या वो एडवांस रूलिंग ले सकता है? सो द आंसर विल बी यस, ठीक है। अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। Here we read whether an arrangement which is proposed to be undertaken by any person, being a resident or a non-resident, is an impermissible avoidance arrangement can be asked in advance ruling. तो इसका आंसर होगा rupee 5 lakh will be the fee charged, ठीक है, rupee 5 lakh will be the fee charged, and it can, ठीक है, whether the transaction proposed to be isn't, है ना, and it can seek, ठीक है। तो so the करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि फीस क्या होगी? 5 लाख रुपए, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या लिखा है? एंड इट कैन नॉट, बट द आंसर इज इट कैन सीट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये भी अब हमारा एमसीक्यू सॉल्व आउट होता है, मतलब बहुत सिंपल था। मतलब इट वाज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन जो 100 करोड़ से जो 300 करोड़ जो हमें दे रखा है यहाँ पे, ये जो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो मैंने निकाला, इसमें दे रखा था 100 करोड़ से 200 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है। दिस मींस इट fall within the range of 100 to 300, so the fees will be rupee 5 lakh, है ना। And a resident or a non-resident, either of them can take advance ruling on the subject matter of impermissible avoidance arrangement. So here we complete our third MCQ. Now we move on to fourth MCQ. Vijay Company Limited is a constituent of the international group, ठीक है। In an appeal proceeding, the CIT appeals, very very important, seek detail of the ownership structure of the enterprise and the profile of the multinational group, ठीक है। अब ये जो चीज आई, ownership structure and the profile of the multinational group, it is mentioned in section 92D1 of the income tax act. अगर मैं 92D1 का आपको एक्सट्रैक्ट दिखाता हूँ स्टडी मैट से, तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड प्रोफाइल ऑफ द मल्टीनेशनल ग्रुप। तो इट इज कवर्ड इन द डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय द एसएससी, ठीक है। तो ये 92D1 में एसएससी को जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, उनमें से ये एक डॉक्यूमेंट है। इज द सीआईटी अपील्स एम्पावर्ड टू सीक दोज डिटेल? सो द आंसर इज, क्या सीआईटी अपील्स ये डॉक्यूमेंट्स मंगा सकती है? तो सो द आंसर इज द असिस्टेंट ऑफिसर और द कमिश्नर अपील्स, है ना, सीआईटी अपील्स इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर एनी पर्सन, है ना, जिसने वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करे। कौन से वाले? 92D1 वाले, जो 92D1 वाले, ये वाले वो डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है बाय गिविंग विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज,
ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस द रिक्वेजिशन पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज. मतलब फर्स्ट 30 डेज एंड नेक्स्ट 30 डेज कैन बी एक्सटेंडेड. तो मतलब ओरिजिनल आंसर क्या होगा, 30 डेज. तो सो द आंसर विल बी CIT अपील्स कैन नॉट. दिस इज रॉन्ग MCQ. ठीक है, दिस इज राइट. ठीक है, कैन सीक डिटेल, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है ना, ये डिटेल तो ले सकता है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 92D1 एंड असेसिंग ऑफिसर और द CIT अपील्स हैज द पावर टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब व्हाट इज द टाइम लिमिट? एज वी हैव सीन द टाइम लिमिट इज 30 days. ठीक है, 30 days. It can be further extended by a period of 30 days. So the original answer will be the 30 days. The time limit is 30 days from the date of the receipt of the notice by the Vijay Company Limited. So the correct answer would be answer number B. ठीक है, answer number B of this is the answer of the fourth MCQ. Now we move on to fifth MCQ. This was a very good MCQ asked in the paper. What they have asked, when Vijay Company Limited pays interest on foreign currency loan, what we have to remember is section 115A of the Income Tax Act. It talks about interest on the foreign currency loan payable by an Indian concern to a non-resident SSE or to a foreign company. ठीक है, to giant INC Russia. ठीक है, this is a foreign company. ठीक है, this is a foreign company. How much of the interest is liable for TDS? ठीक है, TDS is deductible under section 195 of the Income Tax Act. है ना, what is the time for deduction of the income tax? ठीक है, what is the time limit for section 115A? We have already discussed section 115A. interest tax is leviable at the rate of 20% if the interest is payable by the government or an Indian concern. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. एंड 195 टॉक्स अबाउट द टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ द TDS. ठीक है, 195 क्या बोलता है? 195 ये बोलता है कि TDS शुड बी डिडक्टेड, है ना, TDS शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ credit of such amount to the account of the payee or at the time of payment of such amount whichever is earlier. तो इसमें अगर आप देखो विजय कंपनी लिमिटेड ने बोरो किया 1/4/2010 को. क्या लोन बोरो किया? $5 5 लाख रुपए का. इंटरेस्ट 6% से देना है अपन को. ठीक है ना, फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20. ठीक है, इंटरेस्ट इज ड्यू एंड पेबल for which the accounting entries were made in the books of account on 31st March 2020. अगर आप देखो तो इसकी जो पेमेंट हुई थी ना, वो पेमेंट हुई थी इंटरेस्ट इज पेड ऑन. ठीक है, पेड कब हुआ? 25/4/2020. लेकिन एज पर सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो बोलता है TDS शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier. So the earlier event is the credit event which is on 31st of March 2020. So now you will be thinking why I have discussed all these provisions, because I have to discuss rule 26 of the income tax act. ठीक है, rule 26 है ना, this is rule 26. You can find it on annexure पेज नंबर A.8 है ना, A.8 of your ICAI study material. At the end of the module you can find annexure number, I think second or third it will be, you can find it out, rule 26 of the income tax rules. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जब आपको TDS काटना है ना, जब आपको TDS काटना है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS. ठीक है, द रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट यू विल यूज, है ना, मैंने बोला. ठीक है, इट विल बी TTBR. ठीक है, ऑफ सच करेंसी एज ऑन द डेट ऑन विच द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स. मींस दिस मींस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स. व्हेन इट इज रिक्वायर्ड? It is on 31st of March 2020. So the exchange rate will be TTBR as on 31st March 2020. So the relevant provision is Rule 26 of the Income Tax Act. तो इसमें अगर अपन ने देखा, ठीक है, TTBR हमें 31 मार्च 2020 का लेना है, बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन 31 मार्च 2020 का ही लेना है. ठीक है, और ये रहा it is 72. We do not have to take 25/4/2020 because TDS is required to be deducted on 31st of March 2020. So we have to take TTBR of 31st March 2020 है ना. तो अब अपन इंटरेस्ट निकालते हैं. ठीक है, तो इट कम्स आउट टू 5 लाख है ना. 5 लाख के ऊपर अगर मैं 6% के हिसाब से मैं इंटरेस्ट देता हूँ तो 30,000. अब now let us convert it into INR. 30,000 into 72. 72 is the exchange rate. So it amounts to 21,60,000. Now we calculate. Now we have to calculate the tax on this. ठीक है, तो it is chargeable at the rate. Chargeable at the rate of 20%. 20% है ना. It comes out to 4,32,000 and we have to include cess into this 1.04. So the final answer is
449,280. What we have done is we have calculated the interest. We have used exchange rate of 72 for the conversion, because as per Rule 26 of the Income Tax Act, the conversion rate as on the date on which the tax was deductible, which is the date of credit or payment, whichever is earlier. As per section 195 of the Income Tax Act, we have taken the tax exchange rate to be 72 and converted accordingly rupee 30,000, which comes out to 21,60,000, and we have calculated tax at the rate of 15% on it, and we have multiplied it by the further amount of cess. The total comes out to 449,280. So the correct option is option number A. Here we are finished with our case study number 3. Now we will discuss case study number 4 in our subsequent video.